Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Programming. Now in this, we'll start with question number 11, sub question 6. Question is, maximize z is equal to 6x1 minus 3x2 subject to 2x1 plus 4x2 is less than or equal to 4, 4x1 plus 8x2 is greater than or equal to 16, where x1 comma x2 is greater than or equal to 0. So we say this question is based on maximize z is equal to 6x1 minus 3x2 subject to so यहाँ पे constraints आ जाएंगे. So here the first constraint is what? 2x1 plus 4x2 is less than or equal to 4. Next one is 4x1 plus 8x2 is greater than or equal to 16. एंड दिया गया है साथ में x1 comma x2 is greater than or equal to 0. So maximize का समय subject to constraints are given. So here we say the first step is to prepare the table. तो टेबल में फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा? लीनियर इनइक्वालिटीज. Then we have linear equation. Then we have points. तो यहां पे आएगा x1, x2. Then we have coordinates. And then we have region part. So यहाँ पे linear inequalities में first condition is 2x1 plus 4x2 is less than equal to क्या आएगा? 4. So now we write यहाँ पे linear equation का condition and that is 2x1 हो जाएगा plus 4x2 हो जाएगा. This is equal to 4. Now consider x1 का वैल्यू है 0. अगर ये 0 है तो 2 into 0 0 हो जाएगा. 4x2 is equal to 4. तो x2 का वैल्यू क्या आएगा? 1. अब ये 0 है, यहाँ पे नंबर आया. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस x2 एज 0. तो इसको 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 2x1 प्लस 4 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा. तो इट इज 2x1 प्लस 0 इज 2x1. दिस इज इक्वल टू 4. तो x1 का वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट? 2. तो ये हो जाएगा 0,1 2,0. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का कंडीशन. नाउ आई टेक सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंस्ट्रेंट. सो इट इज 4x1 प्लस 8x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16. तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 16. सो यहां पे फर्स्ट वैल्यू आई कंसिडर x1 एज व्हाट? 0. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0, ये हो जाएगा 0. 0 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 16. तो वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? 2. क्योंकि x2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 हो जाएगा विच इज व्हाट? 2. नाउ वी कंसीडर x2 का वैल्यू एज व्हाट? 0. तो ये 0 हो जाएगा. 8 इंटू 0, दिस पार्ट इज 0. तो ये हो गया 4x1. 4x1 इक्वल टू 16. सो x1 का वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट? 4. सो दिस बिकम्स 0,2 और ये हो जाएगा 4,0. तो ये दो वैल्यूज हो गए. एंड देन वी हैव नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. तो ये खाली लिस्ट करेंगे. वी राइट इट एज x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस विल बिकम x1 इज इक्वल टू 0, x2 is equal to 0. So now based on this coordinates we need to plot what? A graph. So for that
We draw x-axis and y-axis. Yes, so ये x axis and y axis draw करेंगे तो we mark over here as x1, यहाँ पे mark करेंगे x1 dash, जो y axis है that is marked as x2 and negative side will be marked as x2 dash. Center position is origin, यहाँ पे it is 1, 2, 3, 4, 5. फिर यहां पे मार्क करेंगे एज व्हाट -1, -2, -3, -4, -5. You mark over here as 1, 2, 3, 4, 5. फिर यहां पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, and यहाँ पे आ जाएगा -5. So now the first coordinate which we need to plot is 0, 1. जब 0, 1 बोला that means 0 और 1, तो ये रहा, this is point on your y-axis. Second condition यहाँ पे जो दिया है it is 2, 0, मतलब it is point on your x-axis, तो ये हो जाएगा. So this and this, ये दो points हो गए, a line will be passing through this. So यहाँ पे so this is the line of the equation 2x1 plus 4x2 is equal to 4. So यहाँ पे लिख देंगे 2x1 plus 4x2 is equal to 4. Now we say the next condition is 0, 2 and 4, 0 है. तो 0, 2 again it is point on your y-axis. And then it is what 4, 0. मतलब यहां पे आ जाएगा. Now अगर मैं यहां पे ध्यान से देखता हूं, so it is point will be passing through 2 and 4. And the equation of this line is ये है 4x1 plus 8x2 is equal to क्या आएगा 16. So ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया. Now दोनों में से एक भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है. Now since the point is not passing through origin, तो we substitute यहाँ पे 0, 0, 0, 0 substitute करने के बाद this becomes 0 plus 0 is less than equal to 4. तो ये कंडीशन satisfy हुआ. ये कंडीशन satisfy हुआ मतलब ये जो लाइन है that will be moving towards what origin side. So यहाँ पे ये origin side के लिए we say this line will go in the downward direction क्योंकि origin नीचे की तरफ है इस ये लाइन के. So we mark this and then second line जो है this is also not passing through origin and same rule यहाँ पे apply होगा that is 0, 0 substitute किया तो 0 plus 0 0 होता है. 0 is greater than equal to 16. नहीं, ये कंडीशन false है. Means this line will move in what? Opposite direction of origin. ये origin side होता है तो ये अब उसका opposite direction. मतलब ये जाएगा इसके ऊपर की तरफ.
अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस इज, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट है? सो देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन. सो आई नीड टू राइट ओवर हियर एज therefore there is no common visible region. Therefore there is no solution for this. So we do not have what? The maximized z ka value, because we don't have what? Any common visible region. So no solution will be there for this. Since यहाँ पे this is going in what? Downward direction, that is towards the origin जा रहा है, तो ये region part में for the first condition ये रहा यहाँ पे. So we say it is what? Origin side. And this line is going away from origin, origin के opposite direction में. So we say away from origin, तो इसको बोला जाता है as what? Non origin side. And now since ये दोनों भी opposite direction में, so there is nothing common which is there. So यहाँ पे there is no visible common region, no common visible region. And since कोई part common नहीं है, तो there is no solution for this. So with this question is done. We make a note of this question. Start with the next question, that is question number 11, sub question 7. Now question is, maximize z is equal to x1 plus x2 subject to x1 minus x2 is greater than or equal to 0, minus x1 plus x2 is less than or equal to 2, where x1 comma x2 is greater than or equal to 0. So यहाँ पे we write maximize z is equal to x1 plus x2. Now subject to, तो इसका मतलब होता है subject to constraint, and subject to constraint में we have the first constraint as x1 minus x2 is greater than or equal to 0. Then we have minus x1 plus x2 is less than or equal to 2, and x1 comma x2 is greater than or equal to 0. So यहाँ पे maximize subject to, so ये values है, that means यहाँ पे first condition आ जाएगा as what? Linear inequalities. फिर आ जाएगा यहाँ पे linear equation. Then we have points. ये हो जाएगा x1 x2. फिर आ जाएगा coordinates. So it is x1 comma x2, and then we have region. So linear inequalities, तो यहाँ पे we have the first condition is x1 minus x2 is greater than or equal to 0. Then we have minus x1 plus x2 is less than or equal to 2. And then we have x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0. अब ये हो गया linear inequalities.
बेस्ड ऑन दिस वी राइट लीनियर इक्वेशन. तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, माइनस x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2. ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0. सो नाउ लेट अस कंसीडर x1 का वैल्यू एज 0. अगर ये 0 है सो 0 माइनस x2 इज माइनस x2. माइनस x2 का वैल्यू 0, दैट मीन्स मेरा x2 का वैल्यू भी क्या आएगा? 0. अरे सिंस x1 एंड x2 दोनों भी 0 आया, सो नाउ आई विल नॉट कंसीडर माई सेकेंड वैल्यू ऑफ x2 एज 0, क्योंकि इधर ऑलरेडी जब x1 को 0 डाला तो x2 का वैल्यू भी क्या आया? 0. क्योंकि अगर वापस इसको भी 0 लिया तो मुझे वापस x1 का वैल्यू भी क्या आएगा? 0. एंड वो तो वही पॉइंट आ जाएगा. सो वी विल नॉट हैव व्हाट? अ डिफरेंट पॉइंट ओवर देयर. सो नाउ लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ x2 एज 1. यहां भी 0 के अलावा वैल्यू लिया. क्यों 0 के अलावा वैल्यू लिया? क्योंकि x1 का वैल्यू 0 हुआ तो उस टाइम पे x2 का वैल्यू भी क्या आया? 0. एंड अगर मैंने वापस x2 का वैल्यू 0 कंसीडर किया होता तो मुझे उस टाइम पे x1 का वैल्यू भी क्या आएगा? 0. तो मुझे कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं मिलता, 0,0 वही पॉइंट मिलता. तो एक पॉइंट से आई कैन नॉट ड्रॉ व्हाट? अ लाइन फॉर दैट. सो इसलिए अभी x2 को क्या सब्स्टिट्यूट किया? 1. एंड व्हेन आई सब्स्टिट्यूट x2 एज 1, ये हो जाएगा x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 1. सो यहां पे दिस बिकम्स 0,0, दिस बिकम्स 1,1. तो ये पार्ट हो गया, दैट इज फर्स्ट कंडीशन. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड कंडीशन. एंड ये सेकेंड कंडीशन में यहां पे इट्स इक्वल टू साइन है, माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 आएगा. ठीक है. अब मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा? वापिस आई कंसीडर x1 का वैल्यू है 0, तो मुझे x2 का वैल्यू क्या मिलेगा? इस केस में 2 मिलेगा. हाँ, अभी इस केस में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं वैल्यू ऑफ x2 इज 0, क्योंकि इधर मुझे कोई दूसरा वैल्यू मिला. तो नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस एज 0. ये कंडीशन में अरे इसको 0 गिना तो माइनस x1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x1 का वैल्यू क्या आएगा? -2. सो दिस बिकम्स 0,2. This becomes -2, 0. So now, based on this, we need to draw what? A graph. So, यहाँ पे we draw the x-axis and the y-axis. Yes, so यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, this becomes x1 dash, ये हो जाएगा x2 and this becomes x2 dash. This becomes my origin. Then we have यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे भी ये 1, 2, 3, 4, 5. ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5. Then we have यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5. So first point is 0, 0. तो 0, 0 मतलब तो ये पॉइंट ऑन ओरिजिन हो गया. उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज 1, 1. 1 and 1. तो
यहां पे कहीं पे तो वो पॉइंट आएगा. सो दिस इज दैट पॉइंट. एंड कैन आई से लाइन विल बी पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन इन दिस केस. सो यस, सो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइन. अब सेकेंड आ जाएगा, इट इज 0,2. तो 0,2 0 एंड 2 मतलब यहां पे, एंड इट इज -2,0 मतलब यहां पे. सो यहां से इफ वी सी, so again we have this as the condition. So ये हो जाएगा -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2. क्योंकि मेरे दो कंडीशंस, दैट इज ये एंड ये मार्क हो गया. Now this is to my non-negativity constraint. So now अब फर्स्ट लाइन अगर मैं देखता हूं तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो रूल सेज व्हाट? वी नीड टू ईदर टेक पॉइंट्स अबव दिस लाइन या फिर बिलो दिस लाइन. कंप्लीटली अबव और कंप्लीटली बिलो. I cannot take point on the line. मतलब इधर इसके ऊपर के कोई भी पॉइंट्स लो या फिर इसके नीचे के कोई भी पॉइंट्स लो, उस पे से पॉइंट्स लेना नहीं है. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो जब ये कंडीशन आया तो मैं इसके ऊपर से पॉइंट कंसीडर करने की कोशिश करता हूं. एंड इफ आई कंसीडर दैट पॉइंट इसके ऊपर, एंड से फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं -4 एंड 2, मतलब यहां का ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो ये लाइन के ऊपर का पॉइंट है ना. सो अब x1 के जगह पे -4 गिनूंगा एंड x2 के जगह पे 2 गिनूंगा. सो -4 -2 ये बन जाएगा -6. इज -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0? सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. मैंने पॉइंट कहां से लिया? ये लाइन के ऊपर से. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये हो जाएगा नीचे की तरफ. सो ये बन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन. यस, नीचे की तरफ आ जाएगा. सो अब आया ये सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन में क्या करूंगा? आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एज व्हाट? 0 0. क्योंकि मेरा सेकेंड लाइन जो है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट 0 0. तो 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 2. तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 2. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. सेटिस्फाई हुआ मतलब दिस विल गो टुवर्ड्स व्हाट? ओरिजिन. तो ये वाले कंडीशन का टुवर्ड्स ओरिजिन साइड कहना इसे, ये भी तो ऐसा नीचे की तरफ आएगा. ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, मतलब कहना इसे इसके नीचे का सारा पॉइंट्स कवर हो जाएगा दोनों भी लाइन में. सी अगर खाली इतना गिना ना तो ये लाइन कवर नहीं होता है, बट अगर ये वाला कंडीशन गिना तो ये लाइन के भी जो नीचे के तरफ के पॉइंट्स है वो तो कवर हो ही गए. सो माय कॉमन फिजिबल रीजन जो है दैट विल बी दिस पोर्शन. अच्छा, बट एक चीज याद रखो कि अपना ग्राफ जो है वो कंडीशन दिया x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे बट इसका कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। सो हियर वी नीड टू मेंशन कि ये क्या हो जाएगा, बिलो ओरिजिन पार्ट। तो यहां पे ना ये रीजन वाले पार्ट में मैं लिख देता हूं एज व्हाट, नाउ सी, ये बिलो ओरिजिन या अबव ओरिजिन ये पार्ट तब आता है जब लाइन पास हो रहा है थ्रू ओरिजिन, तभी ये कैसे आएगा। अदरवाइज ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, या फिर टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये वर्ड आएंगे। अब जैसे ये लाइन है तो इट इज टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इधर मैं लिखूंगा ओरिजिन साइड वापस से। यस, ये बिलो ओरिजिन क्यों आया, क्योंकि हमने पॉइंट्स यहां के कंसीडर किए थे और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये बिलो ओरिजिन हुआ। अच्छा, ऐसा हो सकता था हमने पॉइंट्स यहां से लिया होता, यहां से लिया होता तो शायद ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया रहता। अगर ये कंडीशन यहां से पॉइंट्स लिया और सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स तो बिलो वाला ही रीजन है ना ये लाइन के लिए। सो आप पॉइंट ऊपर से लो या नीचे से लो, आपका जो रीजन रहेगा वो तुम कहीं से भी पॉइंट लो वो सेम आएगा सबका। मतलब किसी ने अगर ऊपर से लिया एंड एक्चुअल में रीजन नीचे है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर किसी ने नीचे से पॉइंट लिया तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज वो मेरा रीजन का पार्ट है, जैसे हम लोग ने देखा बिलो ओरिजिन नीचे की तरफ। बट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। सो वी से द अनबाउंडेड कॉमन फिजिबल region is there, and since unbounded common feasible region है, but हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैक्सिमाइज। अरे बट मेरे पास यहाँ पे उसका मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है, तो आई कैन नॉट गेट व्हाट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट। सो इसका रीजन का पार्ट में क्या आएगा, अनबाउंडेड कॉमन फिजिबल रीजन इज देयर, बट इसका भी मैक्सिमम वैल्यू अपन ढूंढ नहीं सकते क्योंकि इसका एक्सट्रीम वैल्यू क्या है वो पता ही नहीं है, तो मैक्सिमम क्या आ सकता है वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, यही जगह पे अगर मिनिमाइज होता ना तो इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता, ये दो लाइन के पॉइंट्स को कंसीडर करके, बट इस केस में मैक्सिमाइज के लिए आई कैन नॉट सॉल्व। तो अनबाउंडेड कॉमन फिजिबल रीजन, एंड विद दिस ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे ही। सो विद दिस वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। We start with the next question, that is question number 11, sub question 8. It says maximize z, so we write over here maximize z is equal to 4x plus 3y. Then we have subject to so over here it is 4x plus 6y is greater than or equal to 45. So यहाँ पे आएगा 4x plus 6y is greater than or equal to 45. Then 2x plus 3y is less than or equal to 6. 2x plus 3y is less than or equal to 6. 4x minus 3y is greater than or equal to 12. And then we have x comma y greater than or equal to 0. So we write over here as linear inequalities. उसके बाद आ जाएगा लीनियर इक्वेशन।
उसके बाद आएगा यहाँ पे पॉइंट्स, देन वी हैव कोऑर्डिनेट्स, and then we have what? A region. So linear inequalities के लिए फर्स्ट कंडीशन है 4x plus 6y greater than equal to 45. सेकेंड वन है 2x plus 3y is less than equal to 6. 4x minus 3y is greater than equal to 12. And then we have the two non-negativity constraint. That is x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. अब ये सब inequalities को लिखना होगा in terms of what? Linear equations. So linear equation में क्या आएगा यहाँ पे 4x plus 6y is equal to 45. Then we have 2x plus 3y is less than equal to 6. तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 2x plus 3y is equal to 6. Then we have 4x minus 3y is equal to 12. And यहाँ पे आ जाएगा x equal to 0, y equal to 0. उसके बाद ये पॉइंट्स में we have x, y and coordinates में x, y. अब मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू तो we consider this as 0. अगर इसको 0 कंसिडर किया तो we have 4 into 0 which is 0. 6y is equal to 45. तो y is equal to क्या आएगा 45 upon 6 and 45 by 6 को सिंप्लीफाई किया तो 45 and 6 तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 15 जा and 3 2 जा 6 होता है तो 15 upon 2 मतलब 7.5 आ जाएगा. So we mark over here as what? 7.5. Now we have this part as 0. तो इसको 0 कंसिडर किया. जैसे इसको 0 कंसिडर किया मेरे पास 4x is equal to 45 आएगा. That becomes x equal to 45 upon 4. So इसका मतलब है this becomes 11.25. So ये हो जाएगा 0, 7.5, 11.25, 0. तो ये हो गए मेरे पहले वैल्यूज. दैट इज फर्स्ट इक्वेशन के लिए. नाउ सेम वे वी नीड टू फाइंड सेकेंड इक्वेशन के वैल्यूज. x का वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया तो 3y is equal to 6 तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा. इसका वैल्यू 0 y का तो x का वैल्यू मिलेगा एज व्हाट 3. सो दिस बिकम्स 0, 2, 3, 0. यस ये कंडीशन आ गया. अब आएगा x का वैल्यू 0. सो जैसे x का वैल्यू 0 आया तो मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट -4. क्योंकि ये 0 आया तो -3y is equal to 12 तो y is equal to 12 by -3 which is -4. अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा 3. सो हो जाएगा 0, -4, 3, 0. So now with this coordinates we need to plot what? The graph. And now we have x-axis and y-axis के points. Now we see कि x-axis के जो पॉइंट्स हैं उसमें राइट हैंड साइड पे बड़ा वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग तो मुझे राइट साइड का वैल्यू थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा और लेफ्ट साइड पे मैं थोड़ा सा कम रख रहा हूं. सो इफ यू कैन सी मुझे लेफ्ट साइड के भी वैल्यूज तो चाहिए पॉइंट को प्लॉट करने के लिए. यस इन ऑर्डर टू मार्क दैट वैल्यू एज व्हाट नेगेटिव साइड पे भी मुझे वाई एक्सिस में वैल्यू चाहिए. सो एक्स एक्सिस में ज्यादा पॉइंट्स मुझे राइट साइड पे चाहिए दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन के साइड. So now with the help of this we say this is the y axis, this is x dash, this is y dash and ये हो जाएगा यहाँ पे y. ये हो गया मेरा origin. This becomes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 तक पॉइंट्स लिए। सी 12 तक लिया तो भी चलेगा, बट मुझे 11 से ज्यादा तक जाना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास 11.25 है। सो आई हैव टू टेक पॉइंट मोर देन 11। देन यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर ही आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यहां पे भी आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सो इट इज 0,7.5। 7.5 मतलब क्या? ये 7 है, ये 8 है, ये दोनों का सेंटर वैल्यू इज माई 7.5। इधर है 11.25। सो यहां पे दिस इज 11, दिस इज 12। सेंटर पे मुझे मिलेगा 11.5। अभी 11 एंड 11.5 का जो सेंटर वैल्यू है, मतलब यहां पे कहीं पे तो वो पॉइंट आ सकता है, दैट इज 11.25। So a line will be drawn over here. Yes. So यहाँ पे ये जो लाइन का कंडीशन है, we can write the value of line as what? 4x plus 6y is equal to 45 लिखूंगा। ये एक लाइन का कंडीशन हो गया। Now we plot the second condition, that is 0,2। 0,2 मतलब यहाँ पे आएगा and 3,0 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। So ये एक पॉइंट, so again a line will be drawn from here एंड वापिस यहां से लाइन ड्रॉ होगा। सो ये नया लाइन बना। यस, दैट इज यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गया। एंड नाउ वी हैव द थर्ड कंडीशन विच इज 0,-4। अरे 0,-4 मतलब ये पॉइंट हो गया। And then we have 3,0। 3,0 मतलब ये वो पॉइंट हो जाएगा। सो लाइन यहां से पास होगा। सो नाउ वी गॉट दोस 3 लाइन्स। तो ये मार्क कर दिया। अब रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो फॉर रीजन पार्ट पहले चेक करते हैं। 1 2 3 तीनों लाइन दिख रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। सिंस ऑल 3 आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिंपल सा रूल है, वी सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एज व्हाट? 0 0। सो 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 into 0 0 होता है, प्लस 6 into 0 0 होता है। इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 45? नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? ये जो कंडीशन है दिस विल गो इन व्हाट? ओरिजिन के अपोजिट साइड्स। तो ये वो कंडीशन हो गया। एंड सिंस इट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन तो वी राइट ओवर हियर एज व्हाट? नॉन ओरिजिन साइड। यस, ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, हमने पहले ही चेक कर लिया। तीन लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो अगेन वी सब्स्टिट्यूट 0 0 ओवर हियर। सो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेटिस्फाई हुआ मतलब दिस लाइन विल गो टुवर्ड्स व्हाट? ओरिजिन।
क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. सो वी राइट ओवर हियर एज व्हाट, ओरिजिन साइड. अच्छा बट चेक करते हैं ये लाइन है कहां पर पहले तो. सो इफ यू कैन सी दिस लाइन इज दिस एंड ये टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ जाएगा. टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ये नीचे की तरफ होगा. यस. एंड द थर्ड लाइन का कंडीशन इज 4x minus 3y is equal to 12. अच्छा तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इट इज 4x minus 3y is equal to 12. तो ये लिख दिया. एंड नाउ अगेन वी सब्स्टिट्यूट व्हाट, 0 0 0 0 सब्स्टिट्यूट किया. इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 12? नहीं, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. मींस दिस लाइन विल आल्सो मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन. अरे मुझे बताओ, ये वो लाइन है, ये उसका ओरिजिन साइड है, ये उसका नॉन ओरिजिन साइड होगा. ये बाहर की तरफ, ये ऐसा अंदर की तरफ एंड ये नीचे की तरफ. तो ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है. 2 पॉइंट नीचे की तरफ है बट एक बाहर जा रहा है, तो ये वाला पार्ट कहीं पे आएगा ही नहीं. सो इसका मतलब है यहां पे भी पहले लिख देते हैं इट इज व्हाट, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए यहां पे भी क्या लिखेंगे, इट्स नॉन ओरिजिन साइड, क्योंकि अवे फ्रॉम ओरिजिन का. एंड सिंस इसमें अगर हम चेक करते हैं, वी डोंट हैव एनी कॉमन फिजिबल रीजन, सो वी नीड टू राइट ओवर हियर एज, चलो यहां पे लिख देते हैं, देखो देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन. So therefore, there is no solution. So with this question is also done and we also end this session over here. Please revise the concept of this session, that will help you for the next session. Thank you.